24th Independence Day celebration alongside the release of second edition of We Connect Vande Bharat. The release of this magazine on this very auspicious day itself is a reward for all of us. To make it even more special, today amongst us we have two eminent guests. Our special guest today is also one of the guest writers for this edition of We Connect. With 31 years of experience in news reporting and editorship, our special guest has more than 2,500 news reportings and articles and literary contributions in form of various articles, books. He has himself written one book and edited 5 national history and philosophical books. He is indeed a man full of patriotism, values, and strong ethics. One of the most celebrated editors of the present time, I, on behalf of Vikrant College, welcome Shri Atul Tareji as our special guest. He is the chief editor and the group editor for Swadesh. He is also in the advisory board of Makhanlal Patrakarita Vishwavidyalay, Sangeet Vishwavidyalay, and a former member of Jan Sampark Shikshak Samiti. Indeed, it is an honor to have you today with us, sir, as our special guest. I'm sure your presence would really motivate and encourage the young writers, editors of the team. Thank you for being present here today, sir. Atul Tare, sir. As much as I deem it a privilege to introduce our chief guest of today's function, Professor P.S. Bisen, to be honest, as an academician, I am jittering, fumbling, and nervous. Like a tiny plant in front of a huge storm. No matter how much I speak about our chief guest today, his introduction will remain short. Professor Bisen received his PhD in 1972 and his DSc in 1981 from Jabalpur University. He has so far guided 72 doctoral theses and have more than 350 research publications and 12 patents published in India, US, Europe, and Japan. He is an author of 15 international books on contemporary issues of biological sciences. He has served as director in several eminent colleges of India and has also been the Vice Chancellor of Jivaji University. An internationally acclaimed researcher and academician, Dr. P.S. Bisen has also been associated with Vikrant family as the Chairman, Academic Board. As rolling stones gather no mosses, Professor Bisen, having such an enthralling experience and journey, has no baggage of pride or vanity. He is as humble, as approachable as an academician should be. And that is the biggest quality that I have learned from him today. A very hearty welcome to you, sir. A hearty welcome from Vikrant family for your valued presence. I also welcome our beloved chairman, sir, Mr. R.S. Rathore. My hearty welcome to the Director, International Desk, Shri Ajay Singh Tomar. My hearty welcome to Managing Director and Secretary of Indore, VGI, Shri Nitin Singh Tomar. I welcome Shri Vikrant Singh Tomar, Secretary, VGI, Gwalior. Both the treasurers from Indore and Gwalior, Garima ma'am and Gunjan ma'am. I welcome our Reverend Director, Group Director, Shri Satyarayan, and also I welcome Director, Strategies, Mr. Puneet, all the faculty members, students from Indore and Gwalior, a very hearty welcome and a very happy Independence Day to all of you. On behalf of the editorial board, I welcome you all. I also welcome my newly formed student editorial team, because for them, this is the first edition which they have managed to publish. So a hearty welcome to you, to this education fraternity as an editor. On this note, I accord the welcome and now would request the MC of the program,
Professor Subhash Masi to take over and carry forward the program. However, before doing so, I would request both the chief guests to kindly give me the permission to offer a formal release video for the magazine release. Sure. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I request the IT team to first play the video as a token of release. Thank you so much. Over to Subhash Masi, sir, as MC of the program. शुक्रिया मैम, बहुत ही खूबसूरत वीडियो था। आप सभी को विक्रांत प्रणाम। नजदीक मुल्क के आओ तो कोई बात बने, बुझी मशाल को जलाओ तो कोई बात बने, सूख गया है जो लहू शहीदों का, उसमें अपना लहू मिलाओ तो कोई बात बने। 74वें स्वतंत्रता दिवस की लाखों लाख शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को वंस अगेन विक्रांत प्रणाम and I wish you a very happy Independence Day. Once again, I welcome you all to the release of the second edition of the e-magazine of Vikrant Group of Institution, We Connect. We Connect e-magazine के दूसरे एडिशन की विशेषता ये है कि इसके द्वारा विक्रांत समूह अपने छात्रों से और भी करीब से जुड़ गया है। We at Vikrant are always one with the student when it comes to sharing and caring. And as of now, we along with our students are on the same platform in process, compiling, editing, and formatting. It was not just a matter of sharing the platform of WeConnect with student editorial board, but more of a matter of pride to watch our students shoulder responsibilities and act as professionals, thereby putting an all-out effort to stick to deadlines and finally presenting the WeConnect e-magazine as it is in the current shape. Now I call upon the member of the student editorial board to enrich us by a walkthrough of WeConnect e-magazine. To start with, I call upon Mr. Abhay Pathak of the student editorial board for an introduction of the journey. Mr. Abhay Pathak. Thank you so much, sir. Good morning. Good morning, everyone, and happy Independence Day to all of you. My name is Abhay Pathak, pursuing computer science engineering from VITM Gwalior. At the outset, I would like to thank my college VITM, its management, our honorable chief guest, honorable special guest, and all the dignitaries who have taken out their valuable time to be present for the release function of WeConnect second edition Vande Bharat. Even though this is the second edition of WeConnect, for us, the student editor team, it was for the first time that we engaged ourselves to the magazine WeConnect and learned the art of converting imagination into words. We started with a raw idea of developing the students' magazine that could showcase our perspective towards our college, education system, and towards nation on a bigger canvas. Hence, after tough brainstorming, we, the student editor team, came up with a theme of the magazine Vande Bharat. Through this magazine, we all wanted to enlighten the feeling of patriotism in everyone's heart. We thought that this magazine would be a great opportunity to represent our India and its culture in various perspectives. Another reason behind choosing this theme, Vande Bharat, is the day of release of this magazine, that is our Independence Day, as India marks its 74th year of independence and re-embarks the spirit of Atmanirbharta
in every youth of our country. This theme was our obvious choice. I am indeed honored and glad to be the part of this journey wherein we had the share of our bumps and grooves, burning of our midnight oils, and strict and disciplined supervision from our respected and beloved editorial board. Thank you, everyone. This is all from my side. Now I would like to invite Hardik to take over the presentation for explain further about magazine. Thank you. Thank you, Abhay. Good morning, everyone, and happy 74th Independence Day to all of you. I am Hardik Gaur from VITM इंदौर pursuing BTech from Civil Engineering. हमने इस मैगजीन की शुरुआत देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए की है, जिन्होंने हाल ही जून 2020 में गलवान घाटी की मुठभेड़ में कुछ घुसपैठियों को हमारे देश की जमीन पर अपने हक जमाने से रोका था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। और उन्हीं के सम्मान में आज हम विक्रांत परिवार उनकी शहादत को सम्मान करते हैं एवं उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आज 15 अगस्त के मौके पर मैं अपने देश के जवानों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हम हमारे देश के वीर जवानों के बारे में जितनी बातें कर लें, जितनी प्रशंसा कर लें, उतनी कम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनके बारे में जो हमारी भावनाएं हैं उनको हम कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। भारतीय सेना पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है, और हो भी क्यों ना। आज हमारा कल इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आज हमारे देश के जवान अपनी जान अपने हाथ में लिए हमारे रक्षा के लिए खड़े हैं, फिर वो चाहे देश के अंदर आतंकवादियों से हो या फिर सरहद पर घुसपैठियों से। उनकी वीरता और कर्तव्य भावना के लिए पूरा देश उन्हें सम्मान की नजर से देखता है। भारतीय सेना में जाति या धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं। सैनिकों को सिर्फ उनकी योग्यता और क्षमता पर ही चुना जाता है। ऐसे कई मौके हैं जहां इंडियन आर्मी ने अपनी योग्यता सिद्ध करी है, वो चाहे 1971 का लोंगे वाले की लड़ाई हो, जहां एक तरफ 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिक थे जिनके पास 35 से 40 टैंक थे, और दूसरी तरफ सिर्फ 120 भारतीय सैनिक थे जो कि मैदान जंग में पूरी रात डटे रहे, जब तक सुबह वायुसेना ना आके दुश्मनों को उल्टा कर भागने पर मजबूर ना कर दिया। अगर हम 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, जहाँ 150 कमांडोज ने पीओके में घुसकर 6 आतंकवादी कैंपों को तबाह कर 38 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। और 2013 के उत्तराखंड में हुए ऑपरेशन राहत को कैसे भूला जा सकता है, जो अभी तक की पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिविल रेस्क्यू ऑपरेशन है, जहाँ 2 लाख से ज्यादा लोगों को उस प्राकृतिक आपदा से बचाया गया है। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Now I request my friend Pierre to present the next section of the magazine. Thank you, Hardik. Happy Independence Day, everyone. I am Privit Singh Sikarwar from VJ Gwalior, pursuing BTech Computer Science, 3rd year. As I got this task to write a cover story for our e-magazine, and the title of the story was India, God's Gift to the Humanity. So it was very hard for us to describe the huge glorious saga of this country in just 2 or 3 pages. It was just like Gagar mein Sagar Bharna. So we tried to cover the whole important thing from early human civilization to the modern era. We were rich and prosperous in every field, be it education, be it knowledge, art and craft, architecture, engineering, everything. So in our cover story, we include every boons that India had given to the world, like yoga, Ayurveda, discoveries and inventions by Indians in the field of science, medical science, physics, chemistry, mathematics, astronomy, philosophy, everything. And I think all these points are enough to tell that why we were called as a Vishwaguru. And honestly speaking, this journey of whole cover story gave us a feeling that we had already taken a mini tour of this country. Now I request to Chitransi to tell us more about the magazine. Thank you. Thank you, Priyavat. Vikrant, now and happy independence to all. Kanji Shrivastava, pursuing I from VJ earlier. I considered it a privilege to speak in front of everyone. Now this is very interesting section wherein in last 3 months, all the competitions, webinars and workshops that have been conducted by our college on virtual platform. This edition also features a unique attempt of sports web series Junoon that took place in VGI and made a history in the education industry. Through this webinar, students could interact with national and international sports celebrities, and such moments have been captured in words through this section. I hope you all reading this and know more about this section.
Now I request Adarsh to please continue the presentation. Thank you, Chitranshi. I am Adarsh Tiwari, student of MBA first year VITM Gwalior. I would like to walk you through the Students' Corner. The Students' Corner is a palette of colorful expressions from philosophies to science, from management to innovation. Articles of all flavors has been intricately woven to retain our readers' interest. To name few highlighted articles we have featured, working student work-life balance, rainwater harvesting, Aditya, first senior mission to study L1 Surya, innovative practicing in technology, forgiveness, a secular perspective, innovative practices in technology, finance, economics, and management, in pursuit of happiness. Hope you enjoy reading this section, as it is a reflection of us as Indians, us as students, and more importantly, us as a part of education fraternity. Thank you. I request Vaishnavi to continue. Thanks, Adarsh. Vikrant Pranam to all. And I am Vaishnavi Chauri, and it's a great privilege that I'm introducing in front of you all. Seth has done tremendous job and made so much efforts in creating this magazine. This has become possible mainly because of chief editor and other editorial members. They guided us from point first till end to make this magazine super attractive and fun. Vaishnavi, you have to unmute yourself. Vaishnavi, please unmute yourself. Yeah. Go Okay. ahead. Please go ahead. Yeah. Yeah. I'm Vaishnavi Chore, and it's a great privilege that I'm introducing myself in front of you all. Seth has done tremendous job and made so much efforts to creating this magazine. This has become possible mainly because of chief editor and other editorial members. They guided us from point first till end to make this magazine super attractive and fun. Coming on the magazine, Vande Bharat, our contribution was to make it more relevant and interesting, which is brain teaser part, in which we had taken readers for fun, brainstorming in both the languages Hindi and English, tongue twister for mind refreshment, and on the occasion of Independence Day, we have added GK questions so to help knowing India in a better way. Also, some game parts like Sudoku and crosswords puzzle for brain exercises. And for the very first time, we have added the most alluring puzzle segment in which you have to trace the name of our respective professor's name from Indore campus and Gwalior campus. And being a true Vikrantian, you'll surely love it and enjoy it. So thank you. Happy Independence Day to all. And here inviting Abhay for revealing Vande Bharat more. Thank you, Vaishnavi. So another interesting section of this magazine is V Aperture, which is added in the V Connect second edition for the very first time with the theme Monsoon and India. As of everyone loves to capture moment, that's why we include this section, which wakes up the hidden photographer inside everyone. Photography helps us to freeze the memorable moments that we don't want to forget. Pictures can manifest emotions that word cannot. Photography makes us to look at the nature from little closer. I can say that when we start taking photography seriously, we will never see things the same again. Sometimes pictures are the poetry without words. Thus, the V Aperture helped you to see the different view of the nature and nation. This initiative came up with the idea of different view of reality, and it really gives us the best output, as you can see in magazine. Now, I would like to invite Chitranshi Srivastav to conclude the presentation. Thank you. Thank you, Abhay. Now, towards the end of this presentation, we would like to say that this magazine is a product of several rounds of laborious and meticulous editing sessions, coordination amongst various departments and committees, compilation of reports, last-minute edition, and hectic deadlines. While conceptualizing and designing the theme, Vande Bharat needed to ensure that the magazine continues to retain the reflection of our college ecosystem and ethos. The experience has been truly enriching and educative for the entire editorial team. We would like to thank our teacher and friends for believing in us. Their patience and support helped us during moments of exhaustion while collecting, filtering, and editing articles. We thank the editorial board
for letting us make decisions and for valuing our opinions. It was an absolute privilege to be able to read and edit some really extraordinary and profound articles, work of young writers from our college. Hope you all enjoy reading this edition of We Connect as much as we did making it. Thank you so much and Vande Bharat. It was indeed a pleasure to listen to the views of the views that the students shared with us, and the way they have grown, the way they have matured into the real editorial board. It was mainly their work which they did. Now I'll invite our GD sir to share his views with us. Our group director Satyanarayan sir. Thank you, Subhash. Can you hear me? Hello? Yes, sir, we could hear you. Sir. Pranam to all. I wish you all a very happy Independence Day. I'm very proud to be Indian. And it gives me a great pleasure to listen to our children, our students. They beautifully, they have done, especially I've read each and every article they have written. They has covered every aspect of it, from technology to tolerance, on how to be happy. They also wrote an article on environment, like they wrote an article on rainwater harvesting. It was wonderful, and the way they have organized this entire We Connect, I'm really happy and very proud to be part of this family. Thank you. Shukriya, sir. Next, I would request our Honorable Secretary, Shri Vikrant Singh Rathore, sir, to share his thoughts with us. Shri Vikrant Singh Rathore, sir. Good morning, everyone. First of all, very happy Independence Day to all of you. I know this Independence Day is different because we are all fighting a different war right now, and we are held captive by this virus. So I hope we get freedom from this virus also in this Independence Day. So very warm welcome to all dignitaries. I would like to congratulate the editorial team of We Connect. So I think this is the first student editorial team, and we are all really proud of all of the students who have contributed in this We Connect. Really thankful to the chief coordinator. She has done a great job, and I think this is all I want to say right now. Thank you. Thank you. Shukriya, sir. Shukriya. Now I request our Honorable Managing Director, VGI Indore, Shri Nitin Singh Tomar, sir, to share a few words with us. Shri Nitin Singh Tomar, sir. Thank you, Masi, sir. Can you hear me? Sir, you're audible, sir. Okay, first of all, happy Independence Day to all the members who are listening to this. And I remember, 4 months back, there was a time where we were thinking about having a students magazine, basically. So, but that was an idea which came 4 months back. And then we released the first edition called Agaz. And here we are again launching the second edition, Vande Bharat. And the students have really worked very hard. I have seen the way they were working. And I congratulate the complete editorial team, the student editorial team, first of all, and also the faculty editorial team led by Rumia ma'am. And I hope the more and more students join this team and make it more happening. Actually, the student magazine has to be more happening. So the more number of students who join, it's going to be more enjoyable for them only. So once again, I must wish everyone happy Independence Day and thank you very much. Thank you, Nitin, sir. Now I request Honorable Director, International Affairs, Shri Ajay Singh Tomar, sir, to share his thoughts with us. Shri Ajay Singh Tomar, sir. Subhash sir, I think due to some technical issues, Ajay sir has not been able to join this meeting. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, there's some internet connectivity issue there. So I think we can move on. Okay, sir. Now is the time for our Honorable Chairman, Shri Rakesh Singh Rathore, sir,
who has always been a source of encouragement and motivation to us, to enlighten us with his words of wisdom. Honorable Chairman Rakesh Singh Rathod, sir. आजादी की 74वीं वर्षगांठ पर गालविन के शहीद हमारे वीर सैनिकों को उनकी याद में आंखें नम करते हुए और तिरंगे को नमन करते हुए आज के इस अवसर पर हमारे मध्य में विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान क्रमशः अति बुद्धिजीवी श्री अतुल तारे साहब, ख्यातनाम वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन साहब, आप दोनों को पाकर के विक्रांत परिवार में हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारे इस अभिनव प्रयास को, जिसमें हमारे छात्रों द्वारा एक बहुत सारगर्भित पत्रिका का आज विमोचन करवाया जा रहा है, लोकार्पण कराया जा रहा है। इसके पीछे पूरा थॉट प्रोसेस हमारे स्टूडेंट्स का, विक्रांत के स्टूडेंट्स का और चीफ एडिटर का, हमारी एडिटोरियल टीम का, हमारे सभी प्रोफेसर्स का, शिक्षाविदों का बड़ी महती भूमिका रही है। हुसैन सर, आपकी ही गाइडेंस में ये विक्रांत एक पौधे के रूप में आपने रोपा था, जो कि अब पल्लवित होते हुए एक वृक्ष का रूप लेता जा रहा है। इसमें आपके ही आशीर्वाद का पूरा योगदान है। हमारे साथ अब देश दुनिया के अति प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारे छात्रों का और अधिक ज्ञानवर्धन होगा और इनकी योग्यताओं का विस्तार होगा। आज का जो ये लोकार्पण है, ये द्वितीय अंक है। प्रथम अंक भी हमने इस कोविड महामारी के दौर में ही 3 महीने पहले विमोचन किया था, बहुत शानदार तरीके से हुआ था और उससे प्रेरणा पा करके हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर रूमिया आगाशे द्वारा ये सेकंड एडिशन भी आज ऐसे दिन पर दिया गया है, जबकि संपूर्ण भारत तिरंगे को शान में, तिरंगे की शान में जश्न मना रहा है और वंदे भारत एक थीम दे करके आज के दिन इसका विमोचन करा जा रहा है और बड़े पैट्रियोटिक लोगों के उपस्थिति में आपके चक्षुदर्शी रहने पर ये कराया जा रहा है। मुझे बहुत गर्व है। मैं संपूर्ण विक्रांत परिवार की ओर से उपस्थित जितने अतिथि हैं और हमारे छात्र जिन्होंने बड़ा एक्टिवली इसमें भूमिका अदा की है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सबको शुभकामनाएं देते हुए, स्वतंत्र भारत की शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि हमको सुनना है अपने अतिथियों को। मैं देख रहा था अभी हमारी एक एलुमनाई बच्ची और शायद जुड़ी थी, अगर आयोजक उचित माने तो उसके अभिमत जो है उनसे हमको ज़रूर अवगत होना चाहिए, क्योंकि 4, 5, 6 साल पूर्व विक्रांत और किसी शेप में था, आज कुछ और शेप में हो गया है। वो जहाँ पे भी बैठी है वो बच्ची, उसको गर्व महसूस हो रहा होगा। मुझे लग रहा है उसके अभिमत अपने जूनियर्स के लिए उसका क्या सोच रहा था और आज का क्या सोच है, इस पे ज़रूर हमको एक प्रकाश डालना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। और इस मौके पर और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी को वंदे भारत ई मैगजीन के ई लॉन्चिंग सेरेमनी पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। शुक्रिया सर। We have Shivangi Sapra with us. Shivangi, yes, would like to hear your thoughts. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. It's an immense pleasure to come on a call like this and revisit the campus. To start with, I would like to give a hearty congratulations to everybody
we are all fighting amazingly towards, a new slavery that Corona is bringing, that, your freedom is cut short somehow, that you can't do this, you can't do that. But congratulations to all of us who are fighting, and happy Independence Day to everybody. Now, coming to the point which Rathore sir has just spoke about, that, we were the first batch in engineering in the VJ campus, and at Gwalior, and seeing Besen sir, seeing Rathore sir, seeing the teachers, faculty, uh, I can't express in words how great and how amazing I feel. The dream which Rathore sir used to share with us, and Besen sir share with us during our initial span of time of our graduation, it has actually been done in a right way, and I can see a lot of improvement in every single day because of the leaders and the faculty sitting there in Gwalior or Indore campus. Talking about the e-magazine that we just you just spoke about, that, we were talking about it few months back, and it was a wish that we were putting forward, and now it is, it is something which is there. So हमारे काम करने का तरीका अब बहुत ज्यादा तेज हो चुका है. हम सोचते हैं और इमेजिनेशन को बहुत जल्दी ऑन पेपर या एक मॉडल रूप में हम सामने ले आते हैं. That speed has really gained, and that is all because of the hard work and, hardship from the teachers and the faculty, and of course the management. I would like to congratulate each and everybody. Independence Day सिर्फ आज उसको याद करना या फिर आजादी को सिर्फ आज मनाना बहुत ही छोटी एक चीज है. हमें ये दिन हमेशा हर दिन याद रखना चाहिए. बीइंग अ वुमन, आई सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट अ लॉट, एंड राठौर सर मुझे याद भी करते होंगे. आई यूज्ड टू, जो हमारी वुमेन स्टूडेंट्स हुआ करती थी, मतलब मेरी फेलो मेट्स होती थी, अगर उनका कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हुआ करता था तो मैं उनको पास बार बार आया करती थी, कि ये पढ़ाई में बोलती नहीं है, इसको ये दिक्कत है पर ये बोलती नहीं है. So I was always somebody who will always speak a lot about the problems which women might have faced. Independence Day हमें मिले हुए तो कई साल हो चुके हैं, but there are still some problems which are causing a hardship in today's independence. Like, हमारी progress पे है हमारा देश, but commitment from the youth, you and me, my fellowship, my friends who are there, we need to be committed every single day and not just one day. We should be proud of being Indian, not only on Independence Day, but on every single moment that we are living. Our services should be committed towards the country and the betterment of, the country overall. And what I wish today and what I request everybody is to make sure that, irrespective of what caste, creed, gender we are, we have to be united and work towards one nation, one progression towards it. And I like to congratulate each and everybody to be a part of Vikrant. You are in safe hands. We were in safe hands. We are very proud to be Indian. In the same way, we are proud to be a Vikrantian. Thanks a lot, sir. Thank you very much for those wonderful words, Shivangi. Thank you, sir. Special guest from a group editor from Swadesh, Atul Tareji, is with us on this auspicious occasion. I would now request him to please share a few words with us. Shri Atul Tareji. नमस्कार. The video on. हाँ, नमस्कार. Yes. हाँ, can you hear me? Hello. Sir. हाँ. आज के इस स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं. हमारे बीच इस आयोजन में उपस्थित ख्यातिनाम वैज्ञानिक डॉक्टर बिसेन सर, विक्रांत कॉलेज के चेयरमैन आदरणीय राठौर साहब, नितिन जी, और इस सुंदर मैगजीन की एडिटर डॉक्टर रुमिया जी एवं विक्रांत कॉलेज के स्टूडेंट्स. निश्चित रूप से आप सभी के बीच आज इस अवसर पर उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य अभिनव जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है. मैं उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं. सर्वप्रथम मैं कल रात को मेरे पास व्हाट्सएप से ये मैगजीन आई और उसको मैंने प्रारंभिक तौर पर पढ़ा. इसका जो टाइटल है वी कनेक्ट, वास्तव में बड़ा अद्भुत है. हम सब महाभारत काल की ओर चलें तो जब वेदव्यास हिमालय की कंदराओं में
कृष्ण की आराधना करने के पूर्व जब महाभारत की वो रचना कर रहे थे तो बहुत एकांत में बैठे हुए थे, एक निर्जन गुफा में थे। पर वहां पर उन्होंने अहम कृष्णाय नमः नहीं कहा, यानी मैं कृष्ण को नमन करता हूं ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वयम कृष्णाय नमः। ध्यान देने योग्य बात है कि वे अकेले थे हिमालय में कि कंदराओं में, परंतु उन्होंने वहां पे वयम शब्द का प्रयोग किया। वयम यह संस्कृत का शब्द है, अर्थात हम कृष्ण की आराधना करते हैं। तो मैं इस वी कनेक्ट कोड, वी है हालांकि ये, लेकिन मैं इसको वी कनेक्ट के रूप में भी एक पढ़ता हूं। और निश्चित रूप से आज वंदे भारत की आराधना और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों का पुण्य स्मरण करके एक जो वी कनेक्ट और एक सामूहिक भाव का जो प्रदर्शन इस पत्रिका के माध्यम से विक्रांत कॉलेज ने किया है, निश्चित रूप से बहुत अभिनंदनीय है। और मेरा चेयरमैन सर से लेकर विक्रांत कॉलेज की एक एक टीम का, एडिटोरियल बोर्ड का, मैं अभी बच्चों को भी सुन रहा था, वास्तव में बहुत ही सराहनीय और अभिनंदनीय प्रयास है। मुझे एक बार और विक्रांत कॉलेज में आने का अवसर मिला है और उस समय भी आप सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह प्रशंसा का विषय नहीं है कि वास्तव में विक्रांत कॉलेज में एक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है और वो निश्चित रूप से ये जड़ों को जुड़ने का जो आप लोगों का प्रयास है उसका यह श्रेय जाता है। श्रद्धेय मुरारी बापू एक बात हमेशा कहते हैं कि पक्षियों को पंख दिए हैं तो फिर उनको पांव क्यों दिए? वो तो उड़ सकते थे, उड़ सकते हैं, उन्हें पांव भी क्यों दिए? तो पांव इसीलिए दिए कि हम कितने भी उड़े, आकाश की कितनी भी ऊंचाइयों को चूमें, लेकिन हमारी निगाहें हमारी जड़ों की ओर होनी चाहिए। और हमें अगर ठहरना है, हमें अपनी यात्राओं पर गौर करना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने पांवों की भी आवश्यकता होगी। ये वंदे भारत और ये स्वाधीनता दिवस और ये सारे आयोजन निश्चित रूप से हमारा जो आत्म गौरव है, आत्मभान है, उसको भी याद दिलाता है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर मैं जब निकल रहा था तब कई जगह, 2-3 जगह एक गीत सुनने को मिला और वो वास्तव में बड़ा स्तुत्य है, अच्छा गीत भी है। दे दी हमें आजादी खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। निश्चित रूप से स्वाधीनता के इस संग्राम में महात्मा गांधी का जो बलिदान है, महात्मा गांधी का जो परिश्रम है, तपस्या है, उसका हम वंदन करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने गलवान घाटी के शहीदों को याद किया, तो हम सब जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक और चाफेकर बंधुओं से लेकर अशफाक उल्लाह तक इस देश की आजादी को पाने के लिए लाखों लाखों शहीदों ने भी अपने खून पसीने बहाया है। यह आजादी अत्यंत अनमोल है और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हम स्वाधीन भारत में श्वास ले रहे हैं। और इस स्वाधीन भारत को स्वर्णिम भारत और यशस्वी भारत बनाने की जवाबदारी आने वाली युवा पीढ़ी की ही है। और निश्चित रूप से इस पत्रिका को देखने के बाद एक उज्जवल भविष्य की, जिसकी नरेंद्र मोदी जी भी कल्पना करते हैं, और हमारा भारत वास्तव में एक युवाओं का भारत है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की अगर कहीं है तो आज भारत में है, और भारत के युवाओं ने वो करके दिखाया है और वो दिखा रहे हैं। और इसकी एक छोटी सी झलक इस वी कनेक्ट में भी मुझे मिलती है। आने वाले समय में देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं और जो अवसर हैं, दोनों ही आपके सामने हैं। आप सब लोगों की इस पत्रिका को पढ़ने के बाद मुझे वास्तव में नहीं लगता कि आज इस अवसर पर मुझे बहुत लंबा कोई व्याख्यान या बात कहने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अपने आप पर गर्व करें, अपनी मस्तिष्क की किवाड़ और खिड़कियां दोनों खुली भी रखें। जैसे कि विवेकानंद कहते हैं कि हमारा किसी से भी विरोध नहीं है, हम बाहर से आने वाली हर सकारात्मक ऊर्जा को लेना चाहते हैं, लेकिन उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ हमारे अपनी जो इनर पावर है, हमारा जो अपना गौरवशाली इतिहास है, हमारी जो आज कहीं ना कहीं हम आत्मविस्मृति के शिकार हो रहे हैं, उससे बचते हुए हम अपने आप को एक समर्थ और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप लोग, आज मैं एक स्टूडेंट को भी सुन रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने अपनी बात हम सबके समक्ष रखी। हम लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और देश के लिए जो जो हो सकता है वो
बनना ही चाहिए, कैरियरिस्टिक होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। स्वाधीनता दिवस आज हमें यही संदेश दे रहा है। आप सब लोगों ने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया और मैं आप सब लोगों से वर्चुअल ही सही मिल पाया। एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वाद वचन के लिए। Now, as we move towards the end of our journey, I would now call upon our chief guest, Dr. P.S. Bisain, whose academic achievements surpasses the limits of our imagination. I request Dr. Bisain to please enlighten and guide the academic fraternity as well as the students with his words of wisdom. Dr. P.S. Bisain. Sir, are you there? You could hear us? So, yes, so that's fine. या विक्रांत परिवार के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय राठौर साहब, विक्रांत परिवार की पूरी फैमिली, मैं सबको नमन करता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि अतुल तारे जी ने बोला कि ये जो हमको स्वाधीनता मिली, इसके पीछे बहुत सारे सैनिकों का, बहुत लोगों का बलिदान है। उन्हीं की वजह से हम लोग आज मुक्त हवा में सांस ले रहे हैं। मैं सभी को अपना सम्मान व्यक्त करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। विक्रांत परिवार में जब सबसे पहले विक्रांत इंस्टीट्यूट खुली थी, तो उसके बाद शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि मुझे मध्य प्रदेश में पहली बार बिल गेट फाउंडेशन से करीब $1,13,000 की ग्रांट मिली थी ट्यूबरकुलोसिस में काम करने के लिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना कि जरूरी नहीं है कि किसी विषय विशेष से आप जुड़ करके ही आगे बढ़ सकते हैं। कभी कोई एक पत्र आया था, उसमें बिल गेट फाउंडेशन से हमको आया था कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कीजिए। मैंने कैजुअल वे में उसको अप्लाई कर दिया था। उसके बारे में बहुत सीरियस नहीं था, क्योंकि ना मेरे पास लैब थी, ना मेरे पास किसी तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। बायोलॉजी की रिसर्च थी। तो मैंने उस ग्रांट के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया, विच वाज इंटरनेशनल ग्रांट, कॉम्पिटिटिव ग्रांट। जब मैंने अप्लाई किया तो उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, एक वहां से मेल आ गया कि आपको इतनी की ग्रांट दी जाती है, आप अपना पूरा डिटेल प्रपोजल करके भेजिए। अब मेरे हाथ पैर ठंडे हुए कि मैं इस काम को करूंगा कैसे। इस काम को करने के लिए ना मेरे पास बेसिक इक्विपमेंट है, क्योंकि जो मैंने प्रपोज किया था वो करीब करीब इम्पॉसिबल था, मैं कर ही नहीं सकता था। मेरे को ये मालूम था इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब वो ग्रांट आ गई और हम ही ने बोला था, उसके बाद वो हमको ग्रांट दे दी गई, तब मेरे को ये हुआ कि अब मैं क्या करूं। मैंने एक बहाना मारा कि मैं पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में ये काम नहीं करना चाहता हूं, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हूं और इसलिए मैं ग्रांट नहीं ले पाऊंगा। तो वहां से ये आया कि आप अपना एक एनजीओ बना लीजिए, उसको हम ग्रांट दे देंगे। इंडिविजुअल को ग्रांट नहीं दी जाती है। दैट वाज द ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। तो मैंने उनको फिर लेटर लिखा कि भाई हम अब इस एज में हैं कि हम एनजीओ तो नहीं बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप जुड़ जाएंगे तो उनको भी हम ग्रांट दे देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ शर्त रखी कि ये जो है उनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होगा। अब ये हुआ कि ये ग्रांट मेरे को मिलनी ही है और मेरे को काम भी करना है। और उसमें ये था कि हर 6 महीने के बाद जो है उसकी मॉनिटरिंग होनी थी। मैंने ग्रांट ले ली। बिलीव मी, आई टेल यू कि मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, ये काम मैं से कैसे करूंगा। और ये मैंने जबरदस्ती, मैंने पता नहीं कैसे ये अप्लाई कर दिया, तो कैसे ये ग्रांट आ गई।
एक लड़का मेरे को यूनिवर्सिटी में काम करता था, अनीश जकरिया, केरलाइट था, उससे मैंने पूछा, उसको कुछ ग्रांट मिलती थी, मैंने कहा तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ वहाँ उसको मैंने घर बुलाया, उससे डिस्कशन किया, और करने के बाद जब उसने कहा मैं कर लूंगा, मैंने कहा कि तेरे को कितनी फेलोशिप मिलती, उसने कहा 30,000। हम कहा तेरे को मैं 50,000 रुपए दूंगा, तू ये काम कर। उन्होंने मेरे को फ्रीडम दी हुई थी कि आप किसी को भी कितना भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन एक परसेंटेज बांध दिया था, इतना % ह्यूमन रिसोर्स में जाएगा, इतना इसमें, इतना इसमें। उस लड़के ने, फिर मैंने कहा कि ट्यूबरकुलोसिस में मैंने काम किया, पेशेंट का तुम्हें ब्लड कलेक्ट करना है, ऐसे पेशेंट का जिनको कि किसी प्रकार की एंटीबायोटिक्स ना दी गई हो। जीआर मेडिकल कॉलेज में गया, उसने 50-60 सैंपल ले आया। अब सैंपल आने के बाद उसको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पूरा इंक्लूडिंग योर DRDO, देयर वर नो फैसिलिटीज टू कैरी आउट दैट रिसर्च वर्क। मैंने वो ब्लड सैंपल को डीप फ्रीजर में डाल दिया। अब मैं बस यही सोचता रहा कि इसको काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और ये पड़े रहेंगे, रात में भी नींद ना आए, वो मैं क्या करूंगा, मैं अपना मेल पे मेल लिखता जाऊं कि ये मैंने सैंपल कलेक्ट कर लिया, जिनको इस तरह से एनालाइज करवाना है। किसी ने मेरे को बोला, ICGEB करके एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, UNDP की फंडेड है, वहां पे एक मेरे विद्यार्थी है ब्रजेश बारसे, उसकी अलग एक स्टोरी है। वो मेरे को मिला, तो दिल्ली गया हुआ था, वो मेरे से मिलने आया। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है तुम्हारे यहाँ, भाई तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ऐसा ऐसा करना है, हो जाएगा। तो उसने कहा कि सर हमारे यहाँ भी जो है एक इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिया बेंगलोर में, प्राइवेट, वहां से ये सब काम होता है। मैंने बेंगलोर से उसका मैंने मंगवाया कोटेशन, और वो करीब एक 8-10 लाख रुपए का आया कि ये सब पूरी एनालिसिस में करके दे दूंगा, 8-10 लाख रुपए लूंगा। अब मेरे को ये मालूम था कि भाई मैं सरकारी क्षेत्र में रहा था कि कोई 8-10 लाख रुपए खर्च कर दो और उसके बाद उसको कहीं स्टॉक रजिस्टर ना हो, ये कैसे होगा। तो मैंने कनाडा में चिट्ठी लिखी कि मैंने कहा ऐसा ऐसा है, ये है। तो उन्होंने कहा कि गो अहेड, एनालाइज इट, वी विल मेक द पेमेंट। मैंने वहां सैंपल भेज दिए, सैंपल की एनालिसिस होकर के मेरे पास आ गई। अब जब सैंपल की एनालिसिस होके आ गई तो वो कंप्यूटेशनल डेटा था, और कंप्यूटेशनल डेटा को एनालाइज करने के पास मेरे पास पावर नहीं थी, ना कोई और उसको जान सकता था। बहुत बड़ा, एक के बाद एक कई खूब सारी सीडी आ गई, उनको भी मैं देखूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊं। फिर ईश्वर मदद करता है तो किस तरह से मदद करता है, मैंने 2-4 जगह मेल लिखी कि भाई हमारे पास इतना डेटा आ गया है, आई कैन नॉट रीड इट, और ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है 7-8 लाख रुपए बेकार गए हैं। तो किसी ने बोला कि इसको बायो इन्फॉर्मेटिक अप्रोच से इसको आप एनालाइज करवाइए सिंगापुर से, और सिंगापुर का मेरे को फर्म का एड्रेस दिया। मैंने सिंगापुर लिखा, उन्होंने कहा इसमें हम 3.5 लाख रुपए लेंगे। फिर मैंने कनाडा लिखा कि भाई हमको इसको एनालाइज करने के लिए मेरे को कनाडा भेजना है। तो और मैंने अब कनाडा भेजने के लिए मैंने एक पेपर लिया था चाइना से, उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के ऊपर जो एनालिसिस की थी। मैंने कहा इस प्रकार का डेटा, ये मेरा इंडियन जो डायस्पोरा है इसको एनालाइज करके आपको भेजना है। उन्होंने भेजा हमको 3-3.5 लाख रुपए का कोटेशन, मैंने वो भी कनाडा में भेज दिया। उन्होंने कहा कि गो अहेड, आई विल मेक द पेमेंट। और वो डेटा जो आया, मैं आपको बताता हूं कि दैट वाज द बेस्ट वर्क व्हिच आई डिड, and that was published in European Journal of Clinical Microbiology from Europe, जिसमें कि पिछले 5 साल से किसी भी इंडियन का कोई पेपर नहीं था। And that was the work which we could do in India at Vikrant because I got a free hand to carry it out. और किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, न कनाडा ने। और वो जो रिपोर्ट मैंने विक्रांत इंस्टीट्यूशन के थ्रू मैंने जो सबमिट की थी, उसको बहुत अच्छी रिपोर्ट माना गया, और उसके ऊपर मेरा बहुत अप्रिशिएशन हुआ। और वो दैट वाज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन माइक्रोबायोम एनालिसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट इन इंडिया। तो मेरा मतलब यह है कहने का कि आज जो है आपका ब्रेन काम करता है, आज जो है ये जो बाउंड्रीज हैं विषयों की, ये खत्म हो गई हैं। मैं MSc बॉटनी में हूँ,
जब मैंने एमएससी किया था ना उस समय कंप्यूटर होता था, ना माइक्रोबायोलॉजी थी, ना बायोटेक्नोलॉजी थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं बहुत सेफ हैंड में गया। जो सबसे पहली मेरे को यूनेस्को स्कॉलरशिप मिली, मैं प्रोफेसर गाबोर फरकास के पास काम करने गया और उनसे कहा कि सर आप तो यू आर ए वेरी वेल नोन प्लांट साइंटिस्ट, आई वांट टू कैरी आउट माय वर्क इन प्लांट्स अंडर योर गाइडेंस। देन ही सेड टू मी कि कभी आप अपने आप को किसी विषय विशेष का ज्ञाता बनने की कोशिश मत करो। यू आर ए बायोलॉजिस्ट, हर चीज में तुम इन्वॉल्व हो, हर चीज को जानने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी आपका विषय पीछे छूटता जाएगा, आप आगे चले जाएंगे। तो उस समय मैंने प्लांट के ऊपर काम किया और उस तरह से उसको हम आगे लेकर के गए और वो आगे बढ़ते चले गए। तो मैं विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि अब जो नई पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ले। ये जो है, इसमें जो औपचारिक जो शिक्षा है वो करीब करीब खत्म होने वाली, बाउंड्री लेस हो जाएगा। अब आपको 3-3 महीने 6-6 महीने के डिफरेंट प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, इनोवेशन करना पड़ेगा। इवन विद्यार्थी एक टीचर हो सकता है अगर वो अपने किसी भी एक क्षेत्र में काम करता है और उसमें अपने हासिल वो अपना स्पेशलाइज एरिया में अपनी कॉम्पिटेंस को एस्टैब्लिश कर लेता है तो उसको आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। वो 3 महीने के 6 महीने के अलग अलग प्रोग्राम को लेकर के कर सकता है। उसी में एक और हम आपको बताएं, मैं आप लोगों को शायद मालूम हो, नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूं कि हम लोगों का जो शरीर है ना, इसमें 90% बैक्टीरिया है, 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बाकी आप जो है केवल 10% आपका ह्यूमन सेल्स है। 90% आप बैक्टीरिया और फंगल सेल्स के ऊपर आप जिंदा है। और हमारे शरीर के अंदर जो है 360 ट्रिलियन वायरसेस होते हैं और 360 ट्रिलियन वायरसेस के साथ हम जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो वायरसेस जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं वो हमें डिफेंस को या वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हम सरवाइव करते हैं। और हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वहां सबसे मेजर ब्रेन होता है। ये नई नई चीजें जो हैं ये सब कंप्यूटेशनल अप्रोचेस से निकल के आ रही हैं कि अभी तक क्या होता था, जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते थे या तो आपका ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया जाता था या वहां पे कोई दवा दी जाती थी। नहीं, हर डिजीज का अब ये हो गया है कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और वही न्यूरॉन्स आपके बॉडी में आपको मैसेज प्रोवाइड करते हैं ब्रेन में और उसी की वजह से आपको डिफरेंट टाइप की डिजीजेस होती हैं। अब आगे आने वाले समय में जितनी भी डिजीजेस का क्योर होगा वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से होगा और वो हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है जिसमें कहा गया था कि एवरी डिजीज सिट्स इन योर एलिमेंट्री कैनाल। और हम लोगों ने क्या किया, वेस्ट की ओर चले गए थे। इसी को लेकर के अभी क्या हुआ, एक कोविड-19 के चक्कर में मैंने एक पेपर लिखा वायरोम के ऊपर। वायरोम के ऊपर एक पेपर लिखा। वायरोम का मतलब यह है कम्युनिटी ऑफ वायरसेस। हमारे अंदर जो है केवल 251 वायरसेस जो हैं वो बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, बाकी सब बेकार है। बाकी आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैंने एक वायरोम का एक ऐसे ही सोच करके पढ़ के मैंने एक आर्टिकल लिखा, उसको मैंने भेजा लैंसेट में यूरोप में, वहां से वो रिजेक्ट होके आ गया। इसी बीच में चाइना से एक आया कि आप एक हमारे जर्नल के लिए कंट्रीब्यूट पेपर करिए। मैंने उनको वही पेपर एज इट इज भेज दिया और उन्होंने उस पेपर को बेस्ट पेपर मान के हमें कल $1000 का वो वायर ट्रांसफर से पैसा भेज दिया। तो जो आपकी रिसर्च जो है वो लॉजिक के ऊपर बेस होती है और इसलिए आज की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि हमें लॉजिकल सोसाइटी का निर्माण करना है और जब तक हम लॉजिकल सोसाइटी नहीं बनाएंगे तब तक किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर पाएंगे। और लॉजिकल सोसाइटी बनाने के लिए ये है कि वे आप आगे आने वाले अगले 20 सालों में आप देखेंगे ये डिपार्टमेंटल जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ कि मैकेनिकल इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ये सिविल इंजीनियर है, ये सब चीजें जो है
ये बेईमानी सिद्ध होंगी। और आगे आने वाले समय में मैं समझता हूं कि केवल एक ही चीज रहेगी कि आप जो भी जितना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ेंगे वही आज आगे का फ्यूचर है। और मैं समझता हूं कि 2020 एजुकेशन पॉलिसी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है और मल्टीपल एग्जिट दिया गया है। उसको जितनी जल्दी से जल्दी उसको तेजी से पढ़ें, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें और उसके ऊपर छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाएं। ये आपका बायो इन्फॉर्मेटिक अप्रोच जो है, कंप्यूटेशनल अप्रोच, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कंप्यूटेशनल अप्रोच अबाउट ड्रग डिजाइनिंग, डिफरेंट बीमारियां जो आती हैं उसकी ड्रग डिजाइनिंग आजकल जो है कंप्यूटेशनल अप्रोच से होते हैं। 3 डायमेंशनल पिक्चर बना लेते हैं, 2 डायमेंशनल पिक्चर बना लेते हैं। आप लोगों को सबको मालूम होगा विकिपीडिया, विकिपीडिया के अलावा विकिपीडिया कंप्यूटेशनल में एक और आ गया है, उसको बोलते हैं अंबर। अंबर जो है उसमें आप कोई भी बायोलॉजिकल जो फिनोमिनन है उनको एनालाइज कर सकते हैं। दैट इज ए फ्री सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल ऑनलाइन, अंबर। और उसका अभी हम लोगों ने उपयोग कर रहे हैं। क्यों? रेमेडिविर का हम लोगों ने एक अल्टरनेट निकाला है, इंडियन मशरूम कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स में एक केमिकल होता है, उसको लेकर के हम कंपेयर कर रहे हैं थ्रू कंप्यूटेशनल अप्रोचेस विथ रेमेडिविर, जिसका की डिस्कवरी की है यूरोप ने। और उसको हम लोग ले रहे हैं अपना इंडियन मशरूम से केमिकल निकाला है कॉर्डिसेप्स, उसको हम लोगों ने भेजा था। और ये कह के उन लोगों ने कहा कि कुछ और कंप्यूटेशनल एनालिसिस कीजिए। अब वो कंप्यूटेशनल एनालिसिस के लिए फॉर्चुनेटली एक हमारा विद्यार्थी है, वो काम कर रहा है। उसको हम बायोलॉजिकल डेटा देते हैं, वो हमें कंप्यूटेशनल डेटा देता है। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइज करते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो है, जैसे आपके यहाँ पीजीडीएम है, उसमें फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, उसमें आप थोड़ा सा बायो इन्फॉर्मेटिक अप्रोचेस को ले सकते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को ले सकते हैं। और दूसरी भी जो टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही हैं उन सब का आपका जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की ओर नहीं जाएंगे। और आगे आपको ग्लोब से compete करना है, दूसरे देशों से compete करना है, और उनसे compete करने के लिए आपको अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। उसके लिए बहुत ज्यादा शिक्षकों की जरूरत नहीं है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है गाइड की, सुपरविजन की, सुपरवाइजर की। बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली हमसे ज्यादा एडवांस है। हम कहते हैं कि हमें कंप्यूटर नहीं आता है, लेकिन हम उनको ये बताते हैं कि इसको इस तरह से करो, इसका ये, इसको इससे आप एनालाइज करके देखिए। वो कंप्यूटेशन डेटा लेकर के आते हैं, हाँ सर ये काम कर गया, अब इसकी नेटवर्किंग करो, ये कौन कौन सी में काम कर सकता है, कौन कौन से एंजाइम में काम कर सकता है। तो हम उनको गाइड करते हैं और वो अपना आगे बढ़ते हैं। तो अब समय वो है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लगाना पड़ेगा। बेसिक साइंस और कंप्यूटेशनल अप्रोच, इन दोनों को साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा। और 3-3, 4-4, 6-6 महीने के छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। एक एक चीज को लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी जनरेट करेंगे। आज हमारे पास, आज ये कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि नई एजुकेशन पॉलिसी में ये आ गया, वो आ गया। हमने कहा वो तो सब आ गया, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ है जो आपको उस चीज को कैरी आउट कर सके। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज को जनरेट कीजिए, और जब ह्यूमन रिसोर्स जनरेट होगा तभी आप एजुकेशन पॉलिसी जिस रूप में आई है उस रूप में उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है, पॉलिसी तो कुछ भी बना सकते हैं आप, उसका क्रियान्वयन, और उसके क्रियान्वयन के बाद फिर उसका आकलन होगा कि हमारी पॉलिसी कैसी है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा राठौर साहब से भी और पूरे विक्रांत परिवार को कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको अच्छी तरह से गहन अध्ययन करके छोटे छोटे से 3-3, 6-6 महीने के प्रोग्राम बनाएं। और एग्जामिनेशन है मेरे ख्याल में धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाएगा। आपका पब्लिकेशन, आपकी स्किल, वो मार्केट में एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ेगी, ना कि आपकी डिग्री की, ना कि आपके एग्जाम की। तो आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, बच्चों में स्किल जनरेट करने की जरूरत है, कौशल विकास करने की जरूरत है कि उनमें कौशल आए। और कौशल जो है या स्किल है उसकी वैल्यू कहीं डिग्री से बहुत अधिक होगी। और अगर वो स्किल को लेकर के पब्लिश करेगा तो ही विल बी ए ग्लोबल प्लेयर। So this is what I just wanted to say, everyone, and I wanted to share my views about the higher education in a very brief manner. So with these words, I thank Rathore Sahab. I am so happy to see that the Vikrant family has grown very well. Many good faculty they have come, and the journal which has come out as We Connect,
I would suggest that this magazine should take a shape of journal, research journal, invite articles, and let this not be only associated with only engineering, and try to publish papers with interdisciplinary approach using computational sciences for as a basic background. So with these words, I thank Rathod Sahab, I thank the Vikrant family for inviting me for this great event. Thanks a lot. शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत सुंदर विचारों के लिए, और आपने जो स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट दिया, we are heartily obliged. Now I invite Professor Pawan Agrawal, who is the principal VGI Gwalior, for a vote of thanks. Professor Pawan Agrawal. Thank you, Mr. Sir. विक्रांत प्रणाम। 74वें स्वतंत्रता दिवस के नाम सुन, आपकी आवाज आ रही है सर। 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर आज के हमारे पत्रिका वी कनेक्ट वंदे भारत के द्वितीय अंक के विमोचन में हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि शोध एवं शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में ग्वालियर का परचम लहराने वाले ख्याति नाम वैज्ञानिक, संवेदनशील और सक्रियता को के शब्द को चरितार्थ करते माननीय श्री एस बिसेन सर का मैं सहृदय पूरे विक्रांत परिवार से की ओर से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपके प्रेरणादायी शब्दों ने हमें गौरवान्वित किया। साथ ही जिस सहजता के साथ आपने अपने रिसर्च को लेकर जो छोटी छोटी आप बातें हमें बताई, निश्चित ही आज हमारे छात्रों को प्रेरित करेंगी कि नहीं, कोई भी काम के लिए आगे बढ़ना है तो हमसे ही खास तक हम पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बिसेन सर, आपका आशीर्वाद हमेशा संस्थान पर ऐसे ही बना रहे। जैसा कि चेयरमैन सर ने भी कहा कि आपने जो पौधा रोपा आज वो वृक्ष बन चुका है और आगे भविष्य में बट वृक्ष बनने की ओर है। थैंक यू वेरी मच सर, विक्रांत प्रणाम। साथ ही आज के विशिष्ट अतिथि समूह संपादक स्वदेश और पत्रिका जगत के देदीप्यमान सितारे श्री अतुल तारे जी का मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आपकी उपस्थिति ने हमें सम्मानित महसूस कराया और हमारे इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। आपके आशीर्वाद के रूप में हमारे छात्रों को आपकी लेखनी से के द्वारा आज हमें जो लेख प्राप्त हुआ, निश्चित ही वो हमारे बच्चों को आगे प्रेरणा देगा और एक जो आपने राष्ट्र के बारे में, विक्रांत के बारे में जो कल्पना आपने उसमें की है उसको निश्चित ही वो पूरा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका आशीर्वाद आगे भी हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और हम चाहेंगे कि जो हमारी बी कनेक्ट पत्रिका है आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़े और आज ग्वालियर ही नहीं प्रदेश और देश में भी नाम हमारे ग्रुप का नाम ऊंचा करे। थैंक यू वेरी मच अतुल तारे सर। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा परम आदरणीय संस्था अध्यक्ष विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्वालियर एंड इंदौर माननीय श्री आर.एस. राठौर सर का। सर आपके सफल मार्गदर्शन में संस्था दिन पे दिन आगे बढ़ रही है और हर दिन एक नया सोपान ग्रहण कर रही है। तो धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे और आज हम ग्वालियर ही नहीं मध्य प्रदेश और देश में भी विक्रांत का नाम आगे कर पाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे दुबई से जुड़े हुए डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर श्री अजय तोमर जी का कि सर का हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए संभावनाएं आप हमेशा देखते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन सर विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी श्री विक्रांत सिंह राठौर सर का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी कोषाध्यक्षा श्रीमती गरिमा सिंह तोमर जी का। साथ ही हमारे विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्वालियर की कोषाध्यक्ष श्रीमती गुंजन राठौर जी का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे साथ में हमारे ग्रुप के ग्रुप डायरेक्टर श्री डॉक्टर सत्यनारायण सर का। साथ ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे साथ में जुड़े हुए डायरेक्टर स्ट्रेटेजी डॉक्टर पुनीत जी का। साथ ही
मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारी एडिटोरियल बोर्ड का, जिसकी चीफ एडिटर डॉक्टर रूमिया गासे हैं, साथ ही श्री प्रोफेसर तरुण भल्ला सर का, प्रोफेसर सुभाष मैसी सर का, प्रोफेसर अरशद अयूब सर का, प्रोफेसर अभिनव विद्वान सर का, जिनकी 3 महीने के लगातार कठिन परिश्रम और मार्गदर्शन से आज हम इसका सफलतापूर्वक विमोचन कर पाए। स्पेशली आज के जो आज इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, हमारे युवा छात्र, एडिटोरियल टीम के मेंबर्स, 6 छात्रों का मैं बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आपको से आशा भी करते हैं कि आने वाले समय में हमारे और भी छात्र हमारे एडिटोरियल टीम में जुड़ेंगे और इस पत्रिका को एक स्तर पर ले जाएंगे। जैसा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री PS बिसेन सर के द्वारा कहा गया कि हम आगे इसको जनरल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम आप लोगों से अपेक्षा भी करते हैं कि आप पूरे अपने छात्र छात्राओं और सभी शिक्षक गणों के मार्गदर्शन में इस पत्रिका को एक आयाम तक ले जाएं और इसको एक जनरल के रूप में भी परिवर्तित करें। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सभी अपने शिक्षकगण, प्रिंसिपल्स और अपने स्टाफ मेंबर्स सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके, हो सकता है कि छोटे काम हो, बड़े काम हो, आपके जो जो योगदान इस पत्रिका में रहे उसके लिए हमेशा हम आपको याद रखेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका सहयोग रहा है, चाहे वो IT टीम हो कि जिनके सहयोग से आज हम वर्चुअली इस कार्यक्रम को इतने सफलतापूर्वक पूर्ण करने जा रहे हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विक्रांत परिवार के सभी छात्र छात्राओं का, जिनके सहयोग और के कारण आज हम इस जगह पर हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, वंदे भारत, विक्रांत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपके आशीर्वाद प्रदान के लिए, शुक्रिया। नाउ आई रिक्वेस्ट कि सभी अपना वीडियो ऑन कर लें सो दैट एक ग्रुप फोटोग्राफ हो सके, एंड आफ्टर दैट आई पुट इन माय नोट्स ऑफ कंक्लूजन। अपना वीडियो सभी लोग प्लीज ऑन कर लीजिए so that we could have a group photograph on this beautiful occasion. आपका वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए सभी लोग so that we could have a group photograph before we conclude this program. So we can wait for another half minute more for the videos to be on. विजय MP, राहुल कुमार, मोनिका पाटीदार, भूमिका, शिवम, आप लोगों के भी वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए। स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड है हमारे साथ वो भी प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। I think done, sir. Yeah, I think done. I would now. I'll take 1 minute. I'm sorry. Yeah. I जैसे बोलते हैं, जैसे सर ने बोला था कि जब चिड़िया उड़ती है तो उसको पैर की भी जरूरत होती है, और on that note, I would like to thank my editorial team, especially Tarun Bhalla sir, for constant proofreading n number of articles. I would like to thank Abhinav sir for really conceptualizing the Hindi framework. I would like to thank Arshad sir for constantly providing us all the inputs regarding events and updates. I would, from my heartfelt thanks to Subhash Masti sir for giving us the creative aspect of the entire magazine and for moderating today's program. I would like to thank the IT team. There's a lot of work which goes on when
programs like this happen on virtual platforms. So my heartfelt thanks to the IT team, to the computer science department, to all the faculties and students who have chipped in to make this article and the magazine worth it. Thank you so much, everybody. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would like to conclude the unveiling of the e-magazine We Connect with a few words of our first Prime Minister, Sri Jawaharlal Nehru ji, spoken at the stroke of midnight hour on the eve of independence. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Jai Hind, Jai Bharat. Shukriya.